Am I audible? Okay. Am I visible? Okay, that's thank you. अच्छा बताओ किस किस के पास ये वर्कशीट है? Did you get this worksheet? Yes, living creature वाली. Okay, you got this worksheet. Okay. But before we start with the worksheet, अब मुझे बताओ ये चैप्टर हो चुका है आपकी क्लास में? Is this chapter done in your class? Show me the thumbs up if it's done. Living creature हो चुका है? Is it done? Okay. Okay, that's fine. So we quickly revise this chapter. ठीक है, फटाफट हम इसको रिवाइज करेंगे. We will going to revise it very fast क्योंकि आप लोग फास्ट हो. ठीक है. So now I have to go with you. ठीक है. So first question from you. ठीक है. एक क्वेश्चन सब ध्यान से सुनो. Everyone. मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो. Tell me, we humans are living organisms? Yes or no? If yes, show me the thumbs up. Okay, so you are agree with this that we are living organism. Now, who can tell me why we are living organism? हम क्यों है living organism? ऐसा क्या है हमारे अंदर या what we are doing that we can say that we are living organism? Yes, tell me. Okay, I can say from the marks Magase. Yes, आ जाओ corner row third bench girl. आ जाओ बेटा फटाफट. आ जाओ आ जाओ. Eat and breathe. Yes, repeat बेटा फिर से बोलना. We eat, we drink, and we breathe also. Okay, so we can say we are human beings because we can eat, we can drink, and we can breathe. ठीक है, that's nice. These are life process basically. अब जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, the food that we are eating, उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक नाम होता है. खाना खाना और उसको यूज करना. What do we call it? वो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपने पढ़ा है करेक्टरिस्टिक, उसमें एक टर्म है. Who can tell me that term name? Yes, who can tell me? Okay, from the Padam Shri. आ जाओ बेटा, आ जाओ fast. Nutrition. That good, well done. So that is called nutrition. So nutrition is what? Having food so that our body stay healthy. ठीक है, हमारी बॉडी हेल्दी रहे. अब हेल्दी रहेगी तो दैट मीन्स वी कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना? हम अच्छे से सर्वाइव करेंगे. अब नेक्स्ट थिंग इसी से रिलेटेड. ठीक है, हाउ इट इज रिलेटेड आई विल टेल यू लेटर. अब आपने अपने जो ये चैप्टर पढ़ा होगा, यू हैव मस्ट हैव लर्नड अबाउट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. यस, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग टर्म पढ़ी है दोनों? से यस और नो, शो मी द थम्स अप अगर आपने पढ़ी है. ओके, सो दैट्स अ कंफर्मेशन. अब मुझे बताओ कौन कौन अग्री करता है. दोज और अग्री विद मी जस्ट शो मी द थम्स अप. ठीक है, सिर्फ थम्स अप करके दिखाना है. पहले सुन लो, सुन तो लो. अभी तो मैंने पूछा ही नहीं. हाँ, लेट मी आस्क फर्स्ट. अब मुझे बताओ क्या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ध्यान से, breathing and respiration are same thing or different? They are same or different? Okay, you are saying for the same, show me the thumbs up. If you are not agree with me, then show me the thumbs down. Okay, so Padam Shri are saying this. Then Pulitzer, show me thumbs down. Shaurya Chakra, thumbs up. Magase, thumbs down. Oscar, thumbs down. Paramveer, okay, thumbs down. Padam Bhushan, thumbs up. Noble, thumbs down. So most of you are right. क्योंकि mostly I think everyone like एक और दो sections को छोड़ के there must be some confusion, है ना? It's okay. We are giving you benefit of doubt. So let me see. Breathing and respiration are different. ठीक है, दोनों सेम नहीं है. सांस अंदर लेना और छोड़ना इज ब्रीदिंग, बट इट्स नॉट रेस्पिरेशन. ठीक है, सांस हम अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, इनहलेशन और एक्सहलेशन, दैट इज अ ब्रीदिंग. वो सांस लेना है. रेस्पिरेशन को हम सांस लेना नहीं कहते. रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग एक प्रोसेस है. रेस्पिरेशन क्या कर रहा है? जो आपने न्यूट्रिशन लिया, खाना लिया, उससे एनर्जी आपको प्रोवाइड कराता है. कहां से प्रोवाइड कराता है? जो आपने ब्रीदिंग में ऑक्सीजन अंदर लेके गए. ठीक है, सो दैट हेल्प्स यू टू गेट एनर्जी. तो उससे आपको एनर्जी मिलती है. ठीक है, so that's why we can say breathing and respiration are two different terms. ये दोनों different terms है, they are not same.
ठीक है. इन हायर क्लासेस यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन डिटेल. ठीक है. इन योर क्लास 7 यू विल गेट इन डिटेल कि कैसे ये डिफरेंट है, क्यों ये डिफरेंट है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट. अब मुझे बताओ. ओके, आई कैन सी समथिंग हियर इन द ऑस्कर. ऑस्कर मिडल रो थर्ड बेंच गर्ल्स. बेटा आपके बैग के वहां से शायद से चूहा निकल रहा है. ओके, नाउ नाउ अब सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ सारे. ना नो, इट वाज जोक, इट वाज जस्ट अ जोक. ठीक है, मजाक किया था. लिव इट. आप ध्यान से सुनो. अब ये क्यों मैंने किया. अब मैंने जब थर्ड बेंच के गर्ल्स को कहा कि आपके बैग के पास से चूहा निकल रहा है, सारे के सारे जो क्लास के बच्चे थे, दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, है ना. सब रिस्पॉन्ड करने लग पड़ी, कहाँ है चूहा, है ना. सब डर के मारे जो है, जो जो बच्चे थे, है ना, वो तो अपना एकदम ये पूरे एकदम अलर्ट हो गए कि चूहा है तो हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, है ना. सो अब ये भी एक प्रोसेस जो आपके करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हैं उसमें आता है. कोई मुझे बता सकता है व्हाट वाज दैट दैट वी डिड जस्ट राइट नाउ. जो भी हमने जस्ट किया उसको हम क्या कहते हैं. हु कैन टेल मी. ये शौर्य चक्कर से आ जाओ, सेकंड लास्ट बेंच बॉय. आ जाओ, आ जाओ. Respond to stimuli. यस, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है. एनीथिंग एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है, जिसको हम रिएक्ट करते हैं, जिसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं. लाइक अभी हमने एग्जांपल लिया चूहे का. ठीक है, सो इट वाज रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान से देखना बेटा. इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस और एनी एनिमल्स, ठीक है, लेट्स से ह्यूमंस. जो ह्यूमन का बच्चा होता है स्मॉल, ठीक है, लेट्स से दिस इज द बेबी, स्मॉल बेबी विदाउट टीथ, दांत नहीं है उसके अभी. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं. न्यू बॉर्न बेबी को कोई बता सकता है व्हाट डू वी कॉल. क्या कहते हैं इन्हें हम. जो छोटा बच्चा होता है जिसके भी दांत नहीं है, मूव नहीं करता, चलता नहीं है. पद्मश्री, आई कैन सी वन हैंड. यस, आ जाओ बेटा. हमने नाम बोलना बच्चा. नन्ना मुन्ना बच्चा ऐसे थोड़ी ना कहते हैं. हाँ, ये कहोगे साइंस में आप या फिर इंग्लिश में. नन्ना मुन्ना बच्चा इन्फेंट कहते हैं. वी कॉल इट इन्फेंट. लिखो इसे. 6th क्लास में वो पता होना चाहिए. न्यूबॉर्न बेबी को जिसके दांत नहीं है, अप टू द एज ऑफ 2, 2 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है. अब आप बोलोगे 6 महीने के बाद तो दांत आ जाते हैं. यस, लेकिन अभी वो क्या है, प्रॉपरली वो बैलेंस नहीं है, उसकी बॉडी भी बैलेंस नहीं होती, चलता है गिर जाता है. ठीक है, जब तक उसकी बॉडी में एक स्टेबिलिटी नहीं आती, ठीक है, बैलेंसिंग नहीं आती, वी कॉल इट इन्फेंट. ठीक है. अब थोड़ा सा वो बच्चा जो है बड़ा बोलने लग पड़ता है. ठीक है, बातें करने लग पड़ता है. उसको थोड़ा सा आप समझा सकते हो कि यहाँ बैठ जा, यहाँ चल ले. सो अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया. उस बच्चे को आप क्या कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल. अब इस बच्चे को क्या कहेंगे. इस स्टेज को आफ्टर इन्फेंट व्हाट डू वी कॉल. क्या कहते हैं. लिखो इसे बेटा, आपको पता होना चाहिए. वी कॉल टोडलर. उसको हम कहते हैं टोडलर. अब 6 साल से लगभग 11 साल के बच्चे को वी कॉल, जो अभी आप जिस एज में हो, ठीक है, व्हाट डू वी कॉल. वी कॉल यू चिल्ड्रन. यू आर चिल्ड्रन राइट नाउ. ठीक है. नाउ वंस यू क्रॉस दिस एज लिमिट, जब आप 12 इयर्स के हो जाओगे, देन यू विल एंटर इनटू टीनेज. टीनेज मीन्स, अब क्या होता है टीनेज क्या है. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सबके पीछे टीन 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 लगा है. सो वी कैन से टीनेज. और वी कॉल, मतलब जो आप आगे जब जाओगे तो वी विल कॉल यू टीनेजर्स. और उस फेज को व्हाट डू वी कॉल. वी से adolescent. So you will become adolescent. क्या बन जाओगे. adolescent. And after 19 years you will become adult. हम आपको adult कहेंगे. अब यहाँ पर जो चीज देखने वाली है, what you need to observe. अब ये जो बच्चा है छोटा सा, जब बच्चा पैदा होता है, क्या हम उसको देख के कह सकते हैं कि इट्स अ ह्यूमन ओनली. से यस और नो. शो मी द थम्स अप. कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको देख के हम कह सकते हैं यस इट्स अ ह्यूमन.
Can we say that by looking at the baby? Yes, so we can say that it's human only, है ना. बच्चा इंसान ही लगता है ना, तो साइज ही तो छोटा है. विद द एज क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा, उसका मुंह बड़ा होगा, हाथ बड़े होंगे, पैर बड़े होंगे, जैसे भी आप सबके हो रहे हैं. अभी अगर अपनी फोटो देखोगे सेकंड क्लास के बच्चे की, जब आप यू आर इन सेकंड स्टैंडर्ड एंड नाउ यू आर इन सिक्स स्टैंडर्ड, यू विल सी देयर इज इंक्रीज इन द साइज. आपका साइज बड़ा हुआ है, आपकी ग्रोथ हुई है. यस और नो? यही चीज हुआ है ना. बाकी तो आप वही हो, चेंज तो नहीं हुआ है ना. जो गुरजिंदर है वो गुरजिंदर ही है, ठीक है. जो इकबाल है वो इकबाल ही है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू आर सेम, आप वही हो, बट योर साइज इज चेंजिंग, योर body is changing. ठीक है. So that is what happening. Now, in case of let's say mosquito, अगर हम मॉस्किटो का एग्जांपल लें, and let's take an example of frog that is in your syllabus. ठीक है. अब इनके जो न्यूबॉर्न होता है, ठीक है, let's say an example of mosquito first. ये मॉस्किटो है, ठीक है. इसका जो न्यूबॉर्न है इट इज लाइक दिस, जिसको हम एग कहते हैं, ठीक है. सेम इन द केस ऑफ फ्रॉग, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग का जो न्यूबॉर्न है दैट इज आल्सो लुक लाइक दिस. अब मुझे बताओ, जैसे मैंने आपसे पूछा जो ह्यूमन का न्यूबॉर्न है, उसको हम देख के कह सकते हैं लाइक यू सेड कि यस इट लुक लाइक ह्यूमन ओनली, है ना, ह्यूमन की तरह लग रहा है. लेकिन इन दिस केस क्या इनके न्यूबॉर्न इनकी तरह लग रहे हैं? से यस और नो, यस और नो, नो, है ना, नहीं लग रहे. तो इसका मतलब दे हैव टू अंडरगो सम प्रोसेस, उनको कुछ प्रोसेस के थ्रू और कुछ स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा ताकि वो ऐसे दिखें. यस, उनको कुछ ना कुछ तो अपनी बॉडी में चेंज करना पड़ेगा, सो देन दे विल लुक लाइक दिस ओनली, है ना, एडल्ट फ्रॉग या एडल्ट मॉस्किटो की तरह वो दिखे. अब आपने वो प्रोसेस भी पढ़ा है. हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? यस, व्हाट दैट प्रोसेस नेम इज? क्या है उस प्रोसेस का नाम जिससे ये एग जो है एडल्ट मॉस्किटो बनेगा और ये एग एडल्ट फ्रॉग बनेगा? यस पदम श्री, आई कैन सी. नाउ मिडल रो, अब मिडल रो की चांस है. मिडल रो लास्ट बेंच आ जाओ बेटा. नॉट यस, हाँ आप आओ. मैम मैम फर्स्ट एग. प्रोसेस का नाम बताओ. यस बेटा. Metamorphosis. Yes, the process name is metamorphosis. अब इसी से रिलेटेड मेरा yes, that's right बेटा, metamorphosis. Now इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनो. एवरीवन पे अटेंशन. हम ह्यूमन बींग्स में मेटामॉर्फोसिस क्यों नहीं होती? Why there is no metamorphosis in humans? Can any one of you tell me? कोई सोचो थोड़ा सा. क्यों यहाँ पर मेटा? यस मगासिस, आई कैन सी द गर्ल, सेम गर्ल, आ जाओ. कौन होते मैम? हम एग्स में नहीं होते बहुत. So your answer is pretty close to the correct answer. That's really good. That's really good बेटा. हाँ सोचा, इसके लिए बहुत अच्छी बात है. सब ध्यान से सुनो. इससे पहले हमने ह्यूमंस का पढ़ा. ये जो न्यूबॉर्न था किसकी तरह लग रहा है? ह्यूमन की तरह लग रहा है. उसकी बॉडी में कोई ऐसा चेंज नहीं होना कि यहाँ पर हाथ और लगेंगे, यहाँ पर पैर और लगेगा, यहाँ पर आंखें और आएंगी. नथिंग इज गोइंग टू चेंज हियर. बट इन केस ऑफ दिस, अगर हम इस केस की बात करें, देयर इज अ चेंज. यहाँ पर चेंज हो रहा है. यहाँ पर ये पहले एग था, इसकी ना आंखें थी, ना इसके विंग्स थे, ना ही इसके पैर थे. नथिंग वाज देयर. लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस साइकिल this egg will have everything and it will look like adult mosquito or we can say adult frog. ठीक है. So that's why ये जो insects है, ये जो animal है, they undergo this process. But we human beings, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो न्यूबॉर्न है वो ह्यूमन ही है. वो ह्यूमन की तरह ही लगता है. उसका सिर्फ साइज चेंज होना है, उसका साइज बढ़ना है, नथिंग एल्स. ठीक है. सो दिस इज मेटामॉर्फोसिस. ठीक है.
You already learned about this in your class. So let's say about plants now. अब plants में भी जब हम plant जो है उसको grow करते हैं, we start with the seeds, है ना, छोटे छोटे seeds से बात करते हैं. Let's start with the chickpea. अब आपके घर में किस किस के घर में आपने कभी किचन में घुस के कभी देखा है कि दालें पड़ी हैं? किस किस ने देखे हैं दालों को? ध्यान से देखा हो कि दालें रखी हुई हैं, कहाँ रखी हुई हैं? ओके, मेनी ऑफ यू, दैट्स नाइस, है, गुड ऑब्जर्वर. आप मुझे बता सकते हो पल्सेस और व्हाट? पल्सेस क्या होती हैं? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? ओके, पुलिट्जर से लास्ट बेंच आ जाओ बॉय, लास्ट बेंच बॉय, मिडल रो, बॉय इन टर्बन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा. यस बेटा, दालें क्या होती है? व्हाट डू वी कॉल इट? कोई और बेटा बाकी सब प्लीज बी क्वाइट, बी क्वाइट. यस बेटा, आप बोलो. राज नहीं, नाम नहीं मैंने पूछा, मैं नाम थोड़े ना पूछी, दालों के नाम बताओ. होता क्या है? व्हाट दे आर? पल्सेस Pulses are what? Pulses are basically seeds only. Pulses क्या है? Seeds है. जो दालें आपके घर में पड़ी हुई है ना, ब्लैक कलर की देखी होगी, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, चिकपी, बीन्स, है ना, किडनी बीन्स जिसको राजमा कहते हैं. ऑल आर व्हाट? दे आर सीड्स ओनली. अब आप सोचोगे सीड्स हैं तो वो प्लांट क्यों नहीं बन रहे? क्या आपने उन्हें सॉइल में डाला है? क्या आपने उन्हें पानी दिया है? क्या आपने उन्हें सनलाइट दी है किचन के अंदर? तो इसलिए वो प्लांट्स नहीं बन रहे. सो यू हैव टू ग्रो देम इन दैट कंडीशन, दे विल इवेंचुअली ग्रो इनटू अ प्लांट. ठीक है, इसलिए वो प्लांट नहीं बन पा रहे. अब हम चिकपी स्प्राउट्स कौन कौन खाता है? ये किस किस को स्प्राउट्स पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, फ्यू स्टूडेंट आई कैन सी फ्रॉम द नोबल. यस, अदर सेक्शंस. ओके, फ्रॉम परमवीर चक्र, पद्मश्री से भी. Okay, that's nice. Okay, from the Padam Bhushan side, I can see one hand that is coming from the window side. That's nice. Okay, from the Shaurya Chakra also. ठीक है. So sprouts. So sprout is basically, जो अगर हम sprouts की बात करें, वो भी एक प्रोसेस है प्लांट्स का ग्रो होने के बीच में. How come? जो चना है, सफेद चना, let's take example of chickpea, जिसको हम सफेद चना कहते हैं. If it starts growing it into a plant, what we need? क्या हम इस एकदम जो सख्त होता है, हार्ड होता है, क्या हम उसको ग्रो कर सकते हैं प्लांट में? उसको हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? इट इज वेरी हार्ड. फर्स्टली वी नीड टू सॉफ्ट इट. ठीक है, हम उसे थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा. हाउ कैन वी डू दैट? वी नीड टू पुट इन वाटर. ठीक है, हम उसे पानी में सोक करके रखेंगे. आफ्टर सोकिंग क्या हो जाएगा? आफ्टर यू सोक इट, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा. ठीक है, एंड इट विल बिकम, क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा. उसका जो सीड है, कोट है, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है सीड कोट का, सीड का स्ट्रक्चर. सो वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर आप इसको कवर करके, एक गीले कपड़े से कवर करके रखोगे, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कुछ टाइम बाद यू विल सी कि इसके ऊपर से ऐसे टेल जैसा, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर आता है व्हाइट कलर का. और इस चिकपी को हम कहते हैं स्प्राउट्स. ठीक है, अब हम इसे स्प्राउट कहेंगे. अब इसको हम खा लेते हैं. अब सोचो अगर हम इसे नहीं खाएं तब क्या होगा? हम इसको नहीं खाते एंड वी सो इनटू इन सॉइल. अगर हम इसे सॉइल के अंदर डाल देते हैं, लेकिन कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी, कौन से सीजन में ग्रो करता है. ठीक है, तो अगर हमने इसे सॉइल में डाल दिया, वी पुट इन अ सॉइल. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आफ्टर सम डेज, अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, सबसे पहले रूटिंग स्टार्ट होती है, रूट्स बनती हैं. ठीक है, जब रूट्स बन गई, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इज, यू विल सी कि जो रूट है यहाँ पर हो गया, ऊपर एक ग्रीन सा छोटा सा स्ट्रक्चर आएगा. तो यहाँ पर हम कहेंगे शूटिंग इज स्टार्टेड नाउ. मतलब शूट क्या होता है? सॉइल से ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमें प्लांट का दिखता है, दैट इज शूट ओनली. ठीक है, तो शूटिंग आ गई. आफ्टर सम डेज व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि इसी में जो है रूट तो हो चुका है, जो हो चुका है वो तो प्रोसेस रहेगा. नाउ दिस शूट, इन दिस शूट यू विल सी
स्मॉल लीव्स, छोटे छोटे पत्ते भी आ गए, ठीक है। सो अभी जो पार्ट है ये वेजिटेटिव पार्ट है। व्हाई इट इज वेजिटेटिव, व्हाई वी आर कॉलिंग इट वेजिटेटिव? आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वेजिटेटिव पार्ट होता है एक प्लांट का जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसमें जो है आगे हम इसको यूज नहीं करते फॉर द वी कैन से टू मेक मोर प्लांट्स, ठीक है। लाइक लीफ का यूज नहीं होता जनरली, स्टेम का यूज नहीं होता, रूट का यूज नहीं होता। सो दिस इज वेजिटेटिव पार्ट और वेजिटेटिव फेज ऑफ द प्लांट, ठीक है। नाउ आफ्टर सम डेज व्हाट यू विल नोटिस, व्हाट यू विल नोटिस कि अब ये प्लांट काफी बड़ा हो गया है, ठीक है, इसके स्टेम्स भी बहुत है एंड इवेंचुअली इसमें जो है फ्लावर्स भी आ चुके हैं। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। तो अब ये वेजिटेटिव फेज में नहीं रहेगा, अब ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है इसका। अब इट कैन रिप्रोड्यूस मीन्स इट कैन मेक मोर प्लांट्स लाइक इटसेल्फ, अपने जैसे और प्लांट्स ये बना सकता है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। So it starts from the seeds and it ends here. Is it clear to everyone? So like us, जैसे हमने अपने फेज पढ़े, infant, toddler, children, teenagers, then adult. Like this, plant also have their phases. वो सीधा का सीधा एकदम से प्लांट बन के नहीं आ जाता, वो भी धीरे धीरे जो है टाइम लेके डिफरेंट फेजेस को क्रॉस करता है। Is it clear to everyone now? Show me hand raise. इफ इट्स क्लियर, जो भी आज हमने पढ़ा सबको समझ आ चुका है, शो मी द हैंड। ये पुलिट्जर मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉयज, इतनी ठंड लग रही है, हाथ ही ऐसे रखे हुए हैं, हाँ ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम क्वेश्चन फ्रॉम द वर्कशीट। सबने वर्कशीट सॉल्व करके खुद लेके आनी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिए थे वी हैव डन इन द क्लास टुडे। We are going to discuss only the questions here, ठीक है, हम आंसर्स ही डिस्कस करेंगे, we are not going to discuss anything else, ठीक है। So do this worksheet by yourself by the next class, ठीक है। Bye everyone, bye bye students, bye everyone।